Welcome to Astrand Academy. My name is Aditya and you're watching these videos on the famous books written by Lakmeer Singh and Manjeet Kaur for class 10th of biology. So we have already been discussing about chapter number 5, that is environment and our surroundings. हम already इसके बारे में बात कर रहे थे और हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें होती हैं, जो हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट है, उसको समझना कितना इम्पॉर्टेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना कितना इम्पॉर्टेंट है. एंड वी ऑल्सो लुक्ड एट सम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज एंड सम साइंटिफिक aspects like ecosystem, transfer of energy from one organism to another in the form of food chain and food web. So we will continue the same chapter. हम इसी chapter number 5 our environment को continue करेंगे और जो चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उससे हम आगे चलेंगे. We will be starting with a point called trophic level. ये हेडिंग जो है इससे हम शुरू करेंगे. पेज नंबर 254 पर है आपकी बुक में, अगर आपके पास हार्ड कॉपी ऑलरेडी है तो. सो फूड चेन समझने के बाद अब हम बात करेंगे ट्रॉफिक लेवल की. नाउ ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? Whenever energy is being transferred from one organism to another, then from another to third one, so we have some levels of energy which can be represented graphically, जिनको हम graphically represent कर सकते हैं. एक energy का level जो सब same position पर हो, यानी कि सारे के सारे अगर organism food बना रहे हैं, they are producers, so they will be considered in one level and that will be called as one trophic level. But the next set of organisms which are dependent on plants, they will be making a new trophic level or a second trophic level. So trophic level अगर हम इसको define करने की कोशिश करें with more specific terms, then we will find that it is basically a graphical representation of food chain. Food chain का ही graphical representation है. So various steps in a food chain which involve the transfer of food or chemical energy of the food that takes place at trophic levels. तो हर एक टाइप का ऑर्गेनिज्म, अगर हम सारे प्रोड्यूसर्स को एक साथ रख दें, दे विल मेक वन ट्रॉफिक लेवल. सारे प्राइमरी कंज्यूमर्स को एक साथ रख लें, दे विल मेक वन ट्रॉफिक लेवल. देन सारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स को एक साथ रख लें, दैट विल मेक अनदर ट्रॉफिक लेवल. सो वही सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ट्रॉफिक लेवल्स कहलाती हैं. एंड बेसिकली ट्रॉफिक लेवल्स विल सिक्वेंशियली अपग्रेड like this. You will have plants as the base of a trophic level, then herbivores the next trophic level, carnivores will make the next trophic level, and large carnivores, or you can say top carnivores, will make the highest trophic level. So eventually if you place these trophic levels one over another, they will take a shape of a pyramid. They can take a shape of a pyramid or a triangle. So there are plenty of different ways of understanding these trophic levels in terms of energy, in terms of biomass. तो हम इनको आगे से अब trophic levels के साथ साथ इनको pyramid की तरह भी समझने की कोशिश करेंगे. We will learn what pyramids are. But this is how typically we represent trophic levels. इस डायग्राम में आप यहाँ देख सकते हैं. इस डायग्राम में आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 ट्रॉफिक लेवल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं. पहला ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर्स का है. ये बार इतनी बड़ी क्यों है? बिकॉज दैट माइट बी रिप्रेजेंटिंग दी either mass or number of these individuals, or you can say the amount of energy stored in these individuals. So if this bar is largest, that means some parameter of ecosystem is more in these producers, which gradually decreases as you go up. So we decrease the width or dimensions of the next trophic level, making it in a shape of pyramid. So here we talked about what a trophic level is, and if you learn about these individual trophic levels, so as we mentioned that first trophic level is always consist of producers. पहला ट्रॉफिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर्स का होता है. देन हर्बीवोर्स, जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं. हर्बीवोर्स को क्या कहा जाता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के साथ लिंक्ड होते हैं और वो पहले कंज्यूमर्स होते हैं जो सन से एनर्जी हार्वेस्ट की है प्लांट ने उनकी. देन उन प्राइमरी हर्बीवोर्स जो हैं या प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं उनको कंज्यूम कर रहे हैं कार्निवोर्स. बट दोज कार्निवोर्स में बी स्मॉल, जस्ट लाइक वी टॉक्ड अबाउट अ फूड चेन. इफ़ यू रिमेंबर, हमने पिछले वीडियो में एक फूड चेन की बात की थी जिसमें कई सारे लेवल्स थे. यानी कि एक प्लांट था, प्लांट के बाद फिर आप कह सकते हैं ग्रासहोपर था, ग्रासहोपर के बाद एक फ्रॉग था और फ्रॉग के बाद एक हॉक था.
So you can have multiple levels. Sometimes there may not be this third trophic level. ऐसा हो सकता है कि तीसरा trophic level ना हो. There can be directly producers, herbivores, and only a single type of carnivores in an ecosystem. So the shape or the number of these units in a typical trophic level may vary from ecosystem to ecosystem. But in general, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम देखेंगे, जैसे कि पॉन्ड का सिस्टम ले लें या फॉरेस्ट और ओशंस और एनी अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम, दीज विल बी जनरल कंपोनेंट्स विच विल बी फाउंड एनीवेयर, जो कहीं पर भी होंगे, एंड दे आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद फूड चेन. सो द सेम फूड चेन हैज़ अगेन बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर, यहाँ पर एक्सप्लेन की भी गई है. सिंपलेस्ट फूड चेन की अगर हम बात करें तो ग्रास, डियर एंड लायन, which was also discussed in previous video. Then little more complex food chain which has an additional component: grass, insect, frog and bird. So if you look at grass, insect, frog and bird, this is the one that is representing these 4 trophic levels. But here only 3 trophic levels are represented: producers, primary consumers, and then finally top consumers. But here you also have carnivores and then another set of carnivores. So there are 2 carnivores, that is frog and bird. 2 यहाँ पर carnivore हैं. अगर हम आगे चलें, कुछ और representations की बात करें, कुछ और examples की बात करें, तो humans की भी food chain हो सकती है, but human की food chain will be very very simple, as we do not find most of the other organisms consuming humans. So humans directly depend on plants, तो प्लांट एंड ह्यूमन, और कभी कभी ह्यूमंस जो है वो नॉन वेजिटेरियन फूड भी कंज्यूम करते हैं, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा ये एक स्टेप और बड़ी हो सकती है. सो इन केस ऑफ अ ह्यूमन सोसाइटी, अगर हम ह्यूमन सोसाइटी की बात करें, ह्यूमंस एज एन इकोसिस्टम, देन वी विल हैव आइदर 2 ट्रॉफिक लेवल्स और वी विल हैव एट मोस्ट 3 ट्रॉफिक लेवल्स. एंड ये जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं, एज आई मेंशन्ड, इनको एक साथ कनेक्ट करके हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पिरामिडल शेप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड एज वेल. इफ यू प्लेस द लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल, अगर सबसे नीचे का ट्रॉफिक लेवल हम देखें, तो दैट विल फॉर्म द बेस ऑफ पिरामिड, एंड लेट अस से दैट इज रिप्रेजेंटिंग नंबर्स. अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करें, सो प्लांट्स विल बी हाईएस्ट इन नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर में होंगे, तो बेस विल बी क्वाइट ब्रॉड. And then if you move to the next trophic level, अगले trophic level पर जाएं, which is of primary consumers, let's say some rabbits or rats or mice, then relatively the number of these individuals will be less, and therefore it will be little less broader than the original base of the pyramid. तो second trophic level थोड़ा छोटा होगा. उससे further हम next trophic level पर जाएं, which is third trophic level, and it will represent consumers, maybe carnivores. So those carnivores like snakes, they will be even fewer than in number than the rats or mice, and therefore it will further shrink. And the peak of pyramid, इस pyramid की peak किससे बनेगी? That will be formed by top consumers, which are in this case like hawks. Hawks हो सकते हैं, baars हो सकते हैं, बड़ी birds हो सकती हैं. They will make the largest part or the topmost part of the pyramid, but this will be the least thicker part, or you can say it will have the least width over here, because the number of hawks compared to the number of plants and other organisms in the trophic level will be least. So that's why it acquires the entire shape of a pyramid. If you are representing the width of a pyramid by numbers, then it is called as pyramid of number. If you are representing width of a pyramid by overall mass of organisms, then it is called as pyramid of biomass. And if you are representing it by energy present in a trophic level, then it is called as pyramid of energy. तो इस तरह से 3 इंपॉर्टेंट टाइप के पिरामिड हो सकते हैं जो कि ट्रॉफिक लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं: पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ मास एंड पिरामिड ऑफ नंबर्स. सो आफ्टर लर्निंग ऑल दीज थिंग्स, इन चीज़ों को समझने के बाद अब हम एक अगला एस्पेक्ट देखते हैं कि ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है इकोसिस्टम के ऊपर, हाउ ह्यूमंस आर इम्पैक्टिंग द इकोसिस्टम. सो वी नो दैट ह्यूमन have a lot of interventions and lot of activities which exceeds far more than activities of many other organisms. So ecosystem में human का intervention बाकी organism से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि human की जो population है, human का जो number है वो काफ़ी ज़्यादा है. They are occupying almost all type of terrains and habitats. They are not localized to a specific part. Almost entire globe is covered by humans. So we regularly do cropping. हम
क्रॉप्स उगाते हैं, हम उनमें फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, उनमें केमिकल्स छिड़कते हैं, जंगल्स काटते हैं हम क्योंकि वहाँ से हमें वुड चाहिए, हम मिनरल्स निकालते हैं ज़मीन से, ओर्स निकालते हैं। तो हम इन सारी एक्टिविटीज़ से भले ही ह्यूमंस का बेनिफिट करते हैं, भले ही मशीन्स बनाते हैं, चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट स्टिल वी आर डिस्ट्रॉइंग द इकोसिस्टम। हम कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं। और ऐसी कई चीज़ें आपने अक्सर सुनी भी होंगी कि कहीं डैम बन रहा है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता है, क्योंकि अगर डैम बनाया जाएगा तो भले ही ह्यूमन का बेनिफिट हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, कैनाल्स आएंगी, लेकिन एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जो है वो भी डिस्ट्रॉय होता है। So government bodies and activists, they continuously work on that line। वो लगातार काम करते हैं कि किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, एनवायरनमेंट को बचाया जाए, ताकि हमारा इकोसिस्टम जो है वो इम्बैलेंस्ड ना हो जाए। ये जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं इनमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना आ जाए, बिकॉज इफ एनीथिंग हैपन्स, इफ एनीथिंग डिस्टर्ब्स, then the entire ecosystem could collapse। You might have seen examples of dinosaurs which became extinct several millions of years ago because there was possibly a meteorite collision, and that led to the change in the gases or abiotic components of an ecosystem. So destruction of the ecosystem, destruction of habitat, that can lead to destruction of a species or a complete race of organisms. That's why it is important to understand the activities or interventions of different organisms, and humans do a lot of bring a lot of impact on ecosystem। So कई सारी एक्टिविटीज़ यहाँ बताई गई हैं, जैसे ह्यूमंस हंटिंग करते हैं, हंटिंग करने से ऑर्गेनिजम्स कम हो जाएंगे। अब मान लो कोई ह्यूमंस गए किसी ग्रासलैंड में, वहाँ उन्होंने शेर का शिकार करना शुरू कर दिया। पहले के टाइम में आपको पता है ना, राजा महाराजा जाते थे, वो शिकार करते थे, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता था। अगर किसी एरिया में टाइगर्स खत्म हो जाएंगे तो टाइगर जिनको खाते थे उनकी संख्या बढ़ जाएगी। मान लो डियर को खाते हैं तो डियर बढ़ जाएंगे। अब डियर अगर बहुत ज़्यादा हो गए तो वहाँ की सारी घास खा जाएंगे वो, तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड दिस कैन हैपन विद एनी फूड चेन। किसी भी फूड चेन के किसी कंपोनेंट को अगर आप डिस्टर्ब करोगे, उनके नंबर को कम या ज़्यादा करोगे, तो पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। एंड ह्यूमंस माइट हैव लॉट ऑफ इम्पैक्ट। फॉर्मेशन ऑफ सहारा डेजर्ट, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मैन मेड एक्टिविटी का, क्योंकि कभी शायद ये माना जाता है कि सहारा डेजर्ट में इट वाज वेल फ्लरिश्ड इकोसिस्टम, बट ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ और ह्यूमन एक्टिविटीज़ इट गॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। So you might have been to even to Rajasthan। राजस्थान में भी थार डेजर्ट है। So it's sand everywhere। There are very few plants, very few animals। So it has become devoid of typical ecosystem। यहाँ से जो typical ecosystem है वो पूरी तरह ख़त्म हो गया है। And hunting is one of the major reason। hunting जो है वो बहुत major reason है। आज भी hunting हालांकि illegal है, but it is done by a few people to extract the skins, क्योंकि इन organisms की skins जो होती हैं वो बहुत expensive होती हैं। elephant के tusks जो हैं वो expensive होते हैं। So these are bringing risk to different type of ecosystems, and as a student when we are studying about our environment we must be very careful। So if let us consider the first scenario। If you remove all the lions, अगर किसी इकोसिस्टम से जहाँ पर ये फूड चेन हो वहाँ से हम सारे लायंस को हटा दें, उनको मार दें या रिमूव कर दें, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर प्रेजेंट डियर जो है वो बढ़ जाएंगे, उनका नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड व्हेन द डियर्स विल इंक्रीज देन दे विल रैपिडली कंज्यूम द ग्रास। तो ग्रेजुअली वहाँ की जो ग्रास है वो खत्म हो जाएगी, और एक टाइम के बाद अगर ग्रास खत्म हो जाएगी तो डियर जो जिनकी पॉपुलेशन बढ़ गई थी उनके लिए फूड की स्कैरसिटी हो जाएगी और धीरे धीरे वो भी मरने लगेंगे। तो लायंस खत्म हो गए, ग्रास खत्म हो गई, उसके बाद डियर भी खत्म हो गए, पूरा इकोसिस्टम जो है कोलैप्स हो गया। वन केस। अनदर केस, अगर सारे डियर रिमूव कर देते हैं हम, तो सारे डियर अगर रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, तो डियर रिमूव करने से पहली बात तो लायंस मर जाएंगे, क्योंकि लायंस को खाना कुछ नहीं मिलेगा, तो दो पार्ट वैसे ही खत्म हो गए इकोसिस्टम के। फिर ग्रास को जर्मिनेट होने के लिए, ग्रो करने के लिए लगातार उसको कट होते रहना जरूरी है। आपने गार्डन में भी देखा होगा कि घास को काटते रहते हैं तो वो अच्छी फ्लरिश होती है। तो अगर वहाँ ग्रेजिंग नहीं होगी, अगर एनिमल्स उस घास को खाएंगे नहीं और धीरे धीरे कम नहीं होगी, तो वहाँ पर फिर बहुत बड़ी बड़ी घास हो जाएगी। एंड दैट कैन आइदर अट्रैक्ट अदर इंसेक्ट्स, अदर ऑर्गेनिजम्स, दैट कैन शिफ्ट द फूड चेन टू अदर टाइप। और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर ग्रेजिंग ना होने की वजह से धीरे धीरे घास भी खत्म हो जाए। सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस टिपिकल टाइप ऑफ इकोसिस्टम।
नाउ अनदर सिनेरियो, एक और सिनेरियो अगर हम देखें, अगर हम प्रोड्यूसर्स को ही हटा दें, मतलब हम अगर वहाँ से ग्रास ही हटा दें, तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रास नहीं होगी तो हिरन नहीं होंगे, हिरन नहीं होंगे तो लॉयंस भी नहीं होंगे। तो अगर प्रोड्यूसर्स आपने हटा दिए तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पर स्टे नहीं करेगा और पूरा का पूरा इकोसिस्टम फेल हो जाएगा। सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल एंड यू कैन सी सम सैम्पल प्रॉब्लम्स। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं कि ग्रास, हॉक, रैबिट, फ्रॉग एंड डियर, आपको बताना है कि कौन से ट्रॉफिक लेवल में होते हैं। तो आप जानते हैं ऑलरेडी ट्रॉफिक लेवल के बारे में और आप इसको इजीली आंसर भी कर सकते हैं। एंड देन यू हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इकोसिस्टम, ट्रॉफिक लेवल्स, इनसे रिलेटेड। इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं जो अभी तक आपने सीखा है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर प्रेजेंट देयर, एमसीक्यू टाइप्स भी हैं और कुछ हायर थिंकिंग टाइप के क्वेश्चंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सी वाटर कंटेन वाटर बीटल्स, टैडपोल, फिश एंड वीड्स। सी वाटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। राइट अ फूड चेन कंप्राइजिंग ऑफ ऑल गिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आपको इसमें सोचना है, आपको समझना है कि कौन सी चीज़ किसको खाएगी। वीड्स का मतलब है दे विल बी ग्रासेस, तो ग्रास को कौन खाएगा, वेदर बीटल्स विल ईट और टैडपोल विल ईट और फिश विल ईट। फिर टैडपोल और फिश के बीच में क्या रिलेशन है, तो आपको इसको एक्सप्लोर करना है इस तरह के क्वेश्चंस में, एंड देन यू हैव टू आंसर देम। सो आई थिंक विद दिस आई विल stop here because we have completed one specific part of this chapter that was particularly about trophic levels and effect of human intervention on those trophic levels। किस तरह से trophic levels में कोई भी component अगर आप remove कर देते हैं तो ecosystem कैसे destroy हो सकता है। At the same time we have also learnt about how the trophic levels can be represented in the form of pyramids. Pyramids can be of three types: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। तो हमने ये सारी चीज़ें सीखी अलॉन्ग विद सम प्रैक्टिस एक्सरसाइज। विल बी बैक विद पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। इसी टॉपिक पर हम एक सेकेंड पार्ट में फिर डिस्कशन शुरू करेंगे एंड दैट विल बी अबाउट रिमेनिंग टॉपिक्स। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड योर लर्निंग इज गोइंग वेल। आपकी जो बुक की अंडरस्टैंडिंग है, बुक की जो पढ़ाई है, वो इन वीडियोज़ की मदद से बहुत अच्छी हो रही है। आई एक्सपेक्ट दैट, एंड इफ सो यू कैन लीव योर कॉमेंट्स about the videos. You can also like, share and subscribe so that you get regular updates. Thank you very much for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.